Welcome, friends, to this ninth part of this property laws of India. So we'll see here eviction process, rent eviction process, termination process, how it will be procedurally done in the court of law, in the register office. So give me a few seconds. I will share you the PPT and then we'll discuss. Tenancy laws and eviction processes. See, tenancy laws and eviction procedure. Overview. Tenancy laws regulate landlord-tenant relationship, balance tenant protection and landlord rights, cover lease, license and eviction matters. Primary governing laws, Transfer of Property Act, Rent Control Act. Transfer of Property Act is related to lease creation and termination. Rent Control Acts state specified rules for the rent and eviction. Indian Contract Act governs agreements, and Model Tenancy Act 2011 proposed reform. Types of tenancy. License, short-term, often oral, less protected. So here is the main issue. Less protected. This is not a when it is short or more often oral, but it is less protected. Lease, long-term, formal, registered agreement. I will take on this Wednesday 15 judgment on rent control eviction like that. So 15 judgment. So we'll discuss in that particular webinar uh, laws related to that, and then 15 judgments in detail. We will see that in that webinar. That webinar will free for Nani Palkhiwala National Law Club members, live members, and for others, 50 rupees charge will be there. Then rent control tenancy, long-standing tenant protected. Pagadi system is also there. Specifically in Mumbai, Pagadi system is there. Minimum rent and strong tenancy right. So Pagadi system is there. What is the Pagadi system? Suppose if we want to take any room in Chaul in the other area, so that room owner is a different, but who have the possession in with Pagadi system. So he will sell you that. Suppose he is selling you 30 lakh rupees. Suppose the property's original cost is maybe 1 crore. But in Pagadi system, he have already purchased that in Pagadi system in 10 lakh rupees. So now he will sell that in 30 lakh rupees to you. But 30 lakh rupees, then go to original landlord. Original landlord will transfer his tenancy to your name, and he will charge some 5 lakh rupees. So 2 lakh rupees from you, 2 lakh rupees from he. So landlord will continue that rent or increase minimum rent. So not more than 300, 400 rent will be there. But what is the purpose of this? You can save the corporation taxes in this. कॉरपोरेशन को जो 30%, कुछ कुछ जगह पे 20%, 30% टैक्सेस लगते हैं रेंट के ऊपर, वो सेव हो जाते हैं आपके। लैंडलॉर्ड के भी हो जाते हैं, आपके भी हो जाते हैं। आपको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, लैंडलॉर्ड को भी जितना रेंट मिलता है उसके हिसाब से टैक्स देना है। तो सेव द टैक्सेस, पागड़ी सिस्टम इज देयर। सो दे, और वो बहुत परफेक्ट एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंटल है, और इसके लिटिगेशन भी कोर्ट में चलते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दैट इज कस्टमरी। When customary is since on law, right? So law recognize that customs. Like in Karnataka, which Anil sir told earlier, कि agreement to sell is not registered, not mandated to register, but it is customary there. So that can be prevail in the court of law also. So tenant rights now.
right to fair rent and peaceful possession. Right to fair rent and peaceful possession. Rent to notice before eviction or, sorry, right to notice before eviction or inspection. Right to habitable premises and deposit refund. अच्छा प्रीमाइसेस में रहना ये उसका राइट है, और डिपॉजिट रिफंड लेना ये भी उसका राइट है. राइट टू लीगल रेमेडी फॉर डिस्प्यूट. कुछ डिस्प्यूट होता है तो लीगल रेमेडी लेने का उसका राइट है. लैंडलॉर्ड के राइट क्या है? राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, राइट टू टाइमली रेंट एंड प्रॉपर्टी अपकीप. राइट टू इविक्ट ऑन लीगल ग्राउंड्स. राइट टू एंटर विथ नोटिस फॉर इंस्पेक्शन और रिपेयर. विथ नोटिस, हाँ, विदाउट नोटिस आप इंटर नहीं कर सकता है. राइट टू एंटर विथ नोटिस फॉर इंस्पेक्शन और रिपेयर. राइट टू लीज कंट्रोल विथ लीगल बैकिंग. Eviction ground. Under Rent Act, what are the grounds for eviction? So non-payment of rent, subletting without consent, misuse of property or illegal activity, personal need of landlord or redevelopment, expiry of lease term and refusal to vacate. तो ये ग्राउंड है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट करता हूं. नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, 6 महीने का अगर रेंट नहीं आया, so you can initiate the process of eviction. सबलेटिंग विदाउट कंसेंट, आपको कंसेंट ले बगैर विदाउट योर कंसेंट सबलेट करता है. पागड़ी सिस्टम में भी लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेना जरूरी है. दैट टाइम यू कैन सबलेट टू हिम. तो उस पागड़ी सिस्टम में सबलेट नहीं होता है. पागड़ी सिस्टम में आपका रेंट उसको शिफ्ट हो जाता है, उसको भी रेंट का रिसिप्ट मिल जाता है, और क्योंकि वो हैंडसम अमाउंट देता है, 30 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज. मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी और इलीगल एक्टिविटी. अगर प्रॉपर्टी का मिसयूज होता है या कुछ इलीगल एक्टिविटी वहां पे चलता है, तो फिर यू कैन इविक्ट, यू कैन इनिशिएट इविक्शन. इविक्शन का प्रोसेस क्या है वो बताता हूं मैं आपको. पर्सनल लीड ऑफ लैंडलॉर्ड और रीडेवलपमेंट. लैंडलॉर्ड का पर्सनल लीड जो है, अगर पर्सनल लीड जरूरी है, लैंडलॉर्ड को पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो फिर यस, यू कैन स्टार्ट प्रोसेस इविक्शन और टर्मिनेशन ऑफ दैट टेनेंसी. रीडेवलपमेंट में जाना है, इमारत जो है आपकी वो खराब हो गई है या उसका एक्सपायरी डेट आ गया है, सो रीडेवलपमेंट के लिए आप इविक्ट करवा सकते हैं. दैट इज डिपेंड अपॉन द बोथ टर्म एंड कंडीशंस ऑफ बोथ द पार्टीज. एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म्स एंड रिफ्यूजल टू वैकेंट. लीज टर्म एक्सपायर हो गया है और वो मना कर रहा है वैकेट करने के लिए, दैट टाइम इविक्शन प्रोसेस क्या स्टार्ट है. व्हाट इज इविक्शन प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट, इशू रिटन लीगल नोटिस. रिटन लीगल नोटिस इशू करना जरूरी है इविक्शन प्रोसेस के लिए. फाइल इविक्शन सूट इन रेंट और सिविल कोर्ट. रेंट ट्राइब्यूनल है या सिविल कोर्ट है, यहाँ पे आप जो जुरिडिक्शन पर्टिकुलर है वो जुरिडिक्शन देख के वहां पे आप ये फाइल करो सूट, इविक्शन सूट. अटेंडिंग हियरिंग एंड प्रेजेंट एविडेंस. Attending hearing and present evidence. Then court decree for eviction if justified. हियरिंग वगैरह सब होने के बाद, एविडेंस देने के बाद, फिर कोर्ट का डिग्री होता है इविक्शन इफ कोर्ट सेटिस्फाई. एंड डिग्री मिलने के बाद भी कभी कभी सामने वाला इविक्ट नहीं करता है, तो इविक्ट नहीं करेगा आपके फेवर में डिसीजन आने के बाद. देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, दरखास्त जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करना विथ कोर्ट, पुलिस हेल्प इफ नीडेड. मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, mandatory written tenancy agreements, rent authority and tribunal for disputes, time bounded eviction process. 2 महीने में ही eviction process ये मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुसार होता है. Deposit limits 2 months for residential and 6 months for commercial property.
No oral tenancies allowed in Model Tenancy Act. State specified rules, for example, Delhi, long litigation, strong tenant protection. Maharashtra permits self-use eviction. Tamil Nadu applies to post 2017 tenancies. Karnataka use of rent courts. West Bengal procedural compliance essential. Which document required for eviction? Eviction का मतलब किराएदार को निकालना. That is called eviction. रजिस्टर्ड लीज रेंट एग्रीमेंट आपके पास चाहिए. इविक्शन प्रोसेस के लिए रजिस्टर्ड लीज रेंटल एग्रीमेंट चाहिए. और जहां पे अनरजिस्टर्ड ऑप्शनल है तो वहां पे वो भी चलेगा. प्रूफ ऑफ रेंट डिफॉल्ट और सबलेटिंग. रेंट का डिफॉल्ट हुआ इसका प्रूफ चाहिए, या उसने सबलेट किया है किसी को तो उसका प्रूफ चाहिए. लीगल इविक्शन नोटिस जो आपने भेजा है उसको, वो नोटिस की कॉपी चाहिए. ओनरशिप प्रूफ एंड पर्सनल यूज क्लेम. ओनरशिप का प्रूफ और पर्सनल यूज क्लेम ये भी चाहिए. आप ओनर है इसका प्रूफ चाहिए आपके पास. और पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उसका क्लेम जो भी है आपका हुआ. अभी लीगल टिप्स थोड़े से हैं इसमें. यूज रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स. अवॉइड फोर्सफुल इविक्शन, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. मेंटेन प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन एंड पेमेंट हिस्ट्री. ऑलवेज कम्युनिकेशन का प्रूफ रखिए और पेमेंट की हिस्ट्री रखिए. कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट फॉर डिस्प्यूट हैंडलिंग. डिस्प्यूट हैंडल करते समय लीगल एक्सपर्ट को कंसल्ट करो. मनोज, इफ यू आर देयर, जस्ट आई विल रिमाइंड यू, हम जो फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेंगे ना, हम जो हमारे ऑफिस की ओर से है, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप हमारे जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो भी अरेंज करते हैं. फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लॉ कॉलेजेस वगैरह भी मेरे अरेंज करते हैं. काफ़ी लोग अरेंज करते हैं. लेकिन जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेंगे तो मुझे लगता है कि एक फ्री लीगल गाइडेंस कैंप हमने ये विषय पे लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर एक फ्री गाइडेंस कैंप लेना चाहिए. फिर इसमें रेंट के इशू रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, ये सब हम उसको क्लियर करेंगे. सो जस्ट रिमाइंड मी देन इन आई थिंक ऑन थर्सडे, फ्राइडे तो मैं जा रहा हूँ. और नेक्स्ट सैटरडे आपका ये प्रोग्राम है, संडे को प्रोग्राम है. तो नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे we will tag that free legal guidance camp, because this coming Tuesday, free legal guidance camp is taken by that Bombay, my coordinator, uh, Sonawne sir. Advocate Sonawne is taking that camp. So in next week, on Monday or Tuesday, we will take this free legal guidance camp on property matters only. So once in a week, we will arrange this free legal guidance camp on behalf of our direct organization all over India online. एंड दिस इज फ्री गाइडेंस कैंप. तो फ्री गाइडेंस कैंप तो उसमें पैसा कर लेना का कोई सवाल ही नहीं है. तो फ्री लीगल गाइडेंस है. तो प्रॉपर्टी लॉस के ऊपर एक बार रखेंगे, एक बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ऊपर रखेंगे, एक बार हम क्रिमिनल लॉस के ऊपर रखेंगे, या एक चेक बाउंस का रहता है ना, क्या बोलते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 वगैरह, इसके ऊपर हम रखेंगे. तो ऐसे रखेंगे, ऐसे थोड़ा सा स्पेसिफाइड करेंगे ना. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर रखेंगे, ऐसा थोड़ा स्पेसिफाइड करें. हाँ, उस फ्री लीगल गाइडेंस कैंप में सपोज हमने प्रॉपर्टी लॉ का रखा, लेकिन कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वहाँ पे कुछ पूछ रहा है, तो भी हम उसको गाइड करेंगे. ऐसा कुछ नहीं कि हम ऐसा पकड़ के चलेंगे, नहीं भाई यही करना है, ऐसा नहीं. तो जिसको उस समय जो ज़रूरत है वैसा वो हम गाइडेंस करेंगे, लेकिन फोकस हमारा प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर रहेगा. तो सो जस्ट एक रिमाइंड मी. सो लीगल एक्सपर्ट से आप डिस्प्यूट हैंडलिंग का थोड़ा सा गाइडेंस लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. अभी कुछ इससे रिलेटेड बेयर एक्ट देखते हैं. सी दिस बेयर एक्ट्स. कर्नाटका रेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट. लैंड एक्विजिशन का हमारा अलग प्रेजेंटेशन है,
बहुत अच्छा लॉ आया है और लैंड एक्विजिशन का। राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन है, रिहैबिलिटेशन एक्ट, वो भी कनेक्टेड है उसको। तमिलनाडु एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट, यूपी imposition of ceiling act, planning development act, अर्बन टेनेंसी एक्ट। चलो ये यूपी का अर्बन टेनेंसी एक्ट देखते हैं। सबसे बड़ा स्टेट है ना उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा मैटर, मैं महाराष्ट्र का हूँ लेकिन सबसे ज्यादा मैटर मेरे पास उत्तर प्रदेश के हैं। 2 नंबर पे मेरे पास मैटर इसके ही है, महाराष्ट्र के हैं। फिर 3 नंबर पे साउथ इंडिया के हैं। 4th नंबर पे फिर ये बिहार वगैरह इधर से आते हैं। सब पे हैं, फिर अंडमान निकोबार के भी आते हैं। सब आते हैं मैटर। समंदर है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलता है। आर्गुमेंट स्किल बताने के लिए चांसेस ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। टू द पॉइंट ही बात करना पड़ता है। आर्गुमेंट स्किल हम इतना शाइनिंग मार के बात कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में ना, ऐसा नहीं कर सकता है यहाँ पे। ओपनिंग स्टेटमेंट वगैरह, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब दिया है, सब लॉ, इसका इंडेक्स नहीं दिया है उन्होंने। चैप्टर 2 जो है टेनेंसी के ऊपर है। ये डायरेक्ट ऑफिशियल गैजेट बता रहा हूँ मैं। चैप्टर 3 जो है रेंट के ऊपर है। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट eviction, रिकवरी ऑफ पोजीशन और ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड। ये 2021 का है, 24 अगस्त 2021 का ये ऑफिशियल गैजेट ये है। चैप्टर 6 में रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्राइब्यूनल, देयर पावर। और ये मिसलेनियस है 7th चैप्टर। आई विल शो सम फॉर्मेट आल्सो। एक एक मिनट, बेर एक्ट कोई बताना है क्या? वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्बन लैंड एक्ट है, तमिलनाडु एक्ट है। अभी मैं थोड़ा, आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ दैट। कंज्यूमर कंप्लेंट टेम्पलेट। कंज्यूमर कोर्ट में अगर कंप्लेंट करना है तो उसका ये टेम्पलेट है। तो ये सब ऐसा फॉर्मेट है इसका। हाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेट चाहिए तो मेरा बुक ही सेपरेट है, वो एवार के लिए बुक है जिसमें ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट है, पूरे के पूरे जितने ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सबके फॉर्मेट दिए हुए हैं। दैट इज वेरी यूजफुल फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, एंड दैट इज इक्वली यूजफुल फॉर हाई कोर्ट प्रैक्टिस ऑल्सो, बट दैट मे नॉट यूजफुल फॉर ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस। ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस के जो ड्राफ्ट है वो आपके सीपीसी में सिविल्स के दिए हुए हैं और क्रिमिनल में बीएनएसएस के दिए हुए हैं। ट्रायल कोर्ट के ड्राफ्ट अलग होते हैं और अपीलेट कोर्ट के ड्राफ्ट अलग होते हैं। और मेरे कोर्सेस है उसके ऊपर, ड्राफ्टिंग के ऊपर अलग अलग कोर्सेस हैं। और कोर्सेस, इफ यू विजिट टू आवर ऐप एप्लीकेशन, so you will find the courses on property law, property law का हाउ प्रॉपर्टी लॉ एसएलपी ड्राफ्ट। तो उसमें हमने इतना डिटेल में दिया है ना प्रैक्टिकली कि जैसा कि सपोज प्रॉपर्टी लॉ का किसी का फोन आया कि सर मैं हाई कोर्ट से केस हार गया हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है। सो इन दैट केस वी रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड द हाई कोर्ट ऑर्डर फर्स्ट। फिर हाई कोर्ट ऑर्डर पढ़ना कैसे,
हाई कोर्ट ऑर्डर के कौन से पॉइंट हाईलाइट करना, फिर वो क्लाइंट को टाइम देना, वो टाइम पे ही विल कॉल यू, देन हाउ यू डिस्कस विथ हिम। क्लाइंट के साथ डिस्कस करते समय क्लाइंट्स को मोटिवेट करते डिस्कस करना चाहिए। अगर मोटिवेट करके डिस्कस करेंगे तो वो आपको कैश देगा। क्लाइंट को खाली आप लीगल टर्म डिस्कस करते बैठेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, उसके खिलाफ की ही चीज़ें आप उसको बताते रहेंगे। उसके खिलाफ के बताना है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पहले उसके फेवर में कौन सी चीज़ें हैं ये थोड़े हाईलाइट करना, तो उसको पता चलता है कि भाई ये मेरे फेवर में है, थोड़ा वकील मेरा हित चाहता है, तो फिर है। तो यहाँ से लेके फिर देन उसके डॉक्यूमेंट कैसे मंगाने हैं, देन हाउ टू ड्राफ्ट दैट मैटर, और देन हाउ टू आर्ग्यू दैट मैटर इन एडमिशन हियरिंग, एंड हाउ टू आर्ग्यू दैट आफ्टर एडमिशन हियरिंग, ये सब कुछ दिया है। हाउ टू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, यूज किए हैं, सब ऐप पे ऊपर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 15 अगस्त के पहले करेंगे तो आपको अभी के जो रेट है वो रेट में मिल जाएगा, उसमें भी थोड़ा वो डिस्काउंट चालू है। लेकिन इफ़ यू परचेज दैट आफ्टर 15 अगस्त, तो इसके प्राइजेस 50% से बढ़ने वाले हैं। तो ये है, लेकिन वो वर्थ है, बहुत वर्थ है। और इसमें जो भी ड्राफ्ट वगैरह यूज किए ये सब मेरे खुद के ड्राफ्ट है, खुद के ऑर्डर्स हैं। अगर ऑर्डर वो वगैरह सब देखेंगे तो उसमें पूरा के पूरा मेरा आर्गुइन काउंसिल बोल के नाम में का पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखेगा। तो जितने भी कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, और कुछ कोर्सेज नए भी बनाऊंगा मैं अभी, थोड़ा आर्मी मैटर के ऊपर बनाना है मुझे, इनकम टैक्स मैटर के ऊपर बनाना है, ड्राफ्टिंग का, ड्राफ्टिंग से लेके आर्गूमेंट तक का पूरा। तो ये है। तो वो ऐसा ही हम वेबिनार लेंगे, ऐसा वेबिनार सीरीज लेंगे जिसको ऐसा नॉमिनल कुछ फी लगा के लेंगे, और वही रिकॉर्ड करके फिर आगे डालेंगे। तो क्योंकि हमको रेगुलर रेगुलर कोर्सेस लेने में टाइम नहीं, बिकॉज वी आर नॉट अ टीचर, वी आर अ प्रैक्टिशन लॉयर, तो हमको प्रैक्टिस के ऊपर ही फोकस करना है। लेकिन नए नए कोर्सेज की जरूरत लोगों को रहती है, तो वो क्रिएट करके वीडियो करके, अभी ये देखो टेनेंसी लॉ, लॉज ऑफ इंडिया, ये पूरा के पूरा 20 एपिसोड का एक फर्स्ट क्लास कोर्स क्रिएट होगा ऐप के ऊपर, तो आगे चल के लोगों को फायदा होगा इसका। हम्म? आपके ये सब वीडियो भी, अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो भी, ये पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद ऐप पे जाएंगे, फिर आपको उसके लिंक पे आ जाएंगे, एंड लाइफ टाइम एक्सेस है आपको इसका, कोई इशू नहीं है। तो this is the format template of that particular consumer complaint. फैक्ट ऑफ द केस देना है, देन कॉज ऑफ एक्शन है, झगड़े का कारण क्या है, रिलीफ सॉर्ट आपको क्या चाहिए कोर्ट से, जुरिडिक्शन उनका है या नहीं है ये देना है, डिक्लेरेशन दो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो ये सब कुछ फॉर्मेट है, और क्या क्या फॉर्मेट है बताता हूँ मैं आपको जो इससे रिलेटेड है। सैंपल इविक्शन नोटिस, इविक्शन नोटिस आपको देना है, तो सैंपल नोटिस कैसा है इविक्शन का, तो ये है लीगल नोटिस फॉर इविक्शन। लीगल नोटिस देने के लिए लॉयर के थ्रू ही देना चाहिए, दिस इज नॉट लॉ। लीगल नोटिस खाली पार्टी भी डायरेक्ट लीगल नोटिस ऐसा हेडिंग देके दे सकता है, लेकिन हमारे देश में प्रोसीजर है कि नोटिस बोले तो लॉयर के थ्रू ही देना। ओके, सो लॉयर के थ्रू नोटिस देते हैं तो मेरे किसी भाई को 4 पैसे भी मिलेंगे, और दैट विल मोर ऑथेंटिकेट। कभी कभी विदाउट लॉयर नोटिस अगर देता है तो जज पूछ सकता है कि भाई यू हैव नॉट इशू द नोटिस थ्रू लॉयर, थ्रू एडवोकेट। मैंडेटरी नहीं है एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजना, बट जज में आस्क, तो एक निगेटिव पॉइंट चला जाता है। तो इट इज बेटर वे टू सेंड द नोटिस टू लीगल प्रैक्टिशनर। और फिर इसमें ग्राउंड ऑफ इविक्शन चाहिए, फिर नोटिस ऑफ वैकेंट, देन रिक्वेस्ट फॉर कंप्लायंस। ऐसे इसका फॉर्मेट मैंने दिया है आपको, आपके स्टडी मटेरियल में ही है, पूरा मिलेगा आपको। सैंपल लीज एग्रीमेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था आपको, लीज एग्रीमेंट है आपके इसे, तो बताता हूँ मैं आपको। ये लीज एग्रीमेंट का है, हाँ, बिटवीन ए बी। फिर उसमें प्रीमाइसेस का डिस्क्रिप्शन चाहिए, लीज टर्म्स क्या है वो चाहिए, मंथली रेंट कितना है क्या चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कुछ बात चाहिए, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज के बारे में बात चाहिए, यूज ऑफ प्रीमाइसेस है, इंस्पेक्शन एंड एंट्री है, टर्मिनेशन का क्लॉज है, रिटर्न ऑफ पोजीशन है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन है, मिससेलिनियस। ये सब आपका फॉर्मेट है इविक्शन का, सॉरी लीज एग्रीमेंट का।
और कौन सा है, हाँ, और ये जो दिखता है ना आपको, प्रॉपर्टी लॉज फॉर वेबिनार, ये सब के सब जितने भी मैंने 20 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए है ना, ओके, ये सब इकट्ठा एक ही फाइल में यहाँ पे है, सब सब ऐसे बुक जैसा है। मैं इसका एक बुक भी पब्लिश करूँगा, बराबर है, तो भी हो जाएगा अच्छा। कितने पेजेस है मेरे ख्याल से, 116 पेजेस है, यहाँ पे दिखता है 116 पेजेस का है टोटल। एक मैंने एक पीडीएफ ये बना के भी दिया है आपको, ये तो वर्ड फाइल है, ऐसा है। अब मैंने वर्ड इसलिए दिया कि आपको कुछ आपका ऐड करना है तो ऐड करके आप उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। और पीपीटी भी मैंने ओपन दी है, तो पीपीटी में आपको कुछ डालना है, करना है, किधर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, किधर आपको कॉलेजेस में वगैरह एज ए प्रोफेसर एज ए लॉयर आपको लेक्चर देना है, तो फिर वो नया पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं, आप मेरी पीपीटी यूज करो, इसलिए मैंने ओपन दी है। वो खाली मेरा नाम जयप्रकाश सोमानी एडवोकेट पहले स्लाइड के ऊपर वो निकाल दो, आपका नाम डालो, ये करो करो, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये याद रखना। मेरी किसी भी किताब को कॉपीराइट में लेता नहीं है। समाज को जरूरत है वो उसको कॉपी करेगा, जिसको जरूर जिसको पॉसिबल है वो पैसा देगा, जिसको पॉसिबल नहीं वो जेरोक्स करके यूज करेगा, लेकिन यूज करना इंपॉर्टेंट है, मेरा नॉलेज मेरे लिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम अर्निंग handsome amount in Supreme Court of India. I am not depending upon the sale of that book like that. So इसलिए मेरे किसी भी किताब को कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरे किसी भी वीडियो जो 400 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे है, नो कॉपीराइट है, आप इजीली उसको कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, वो उसको रिमिक्स कर सकते हैं, उसमें का कुछ पार्ट करके ये करके उसमें कुछ चेंज करके भी आप उसको रिपब्लिश कर सकते हैं। ऐसा मेरा पहले से ऐसा लाइफ है, पूरा ओपन किताब जैसा है, जो भी है सीधा साधा है। तो ये सब फॉर्मेट्स वी हैव सीन। नाउ I will end this presentation here, and then we'll start next presentation. Thank you.